Dear student, today I will be discuss two important content related from the first chapter. First, the theory related from the origin of human, and second, how early humans have obtained food. There are two theory related the place of origin of modern humans. First, regional continuity model, and second, the replacement model. First, I discuss the regional continuity model. The argument advanced in favor of the regional continuity model of human origin is that archaic human origin, especially related from Homo sapiens, evolved at different rates in different regions into modern humans. That is why there was difference in the first appearance of modern humans in different parts of the world. This argument is based on the regional differences in the features of present day humans. According to the supporters of the arguments, these dissimilarities are because of the difference between the pre-existing Homo and Homo erectus population which lived in the same region. This argument does not provide a convenience explanation of the archaeological evidence. The other model visualizes the complete replacement everywhere of all the older forms of humans with modern humans. Second, the replacement model. According to the replacement model, wherever humans lived, all of his older forms were replaced with modern humans. There is evidence of the genetic and anatomical homogeneity of modern humans. It has been argued in its favor that this similarity is so because their descendant originated in a single region, Africa. They went over to other areas from here. It is evident by the earliest fossils of modern humans found at Ethiopia. On the other hand, the physical difference observed among modern humans are because of the living permanently at any specific place for thousands of years. Conditions of different places helped in the origin of these differences because humans adapt themselves according to specific circumstances of any particular places. तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से मानव विकास की प्रक्रिया से संबंधित दो सिद्धांत हैं, जिसमें क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल ये कहता है कि आधुनिक मानव का विकास भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियंस से हुआ। उनके विकास की गति धीमी थी और अलग अलग थी, इसलिए आधुनिक मानव संसार के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग स्वरूप में दिखाई देते हैं। इस तर्क का आधार आज के मनुष्यों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हैं, जो शारीरिक से संबंधित हैं, और इसे मॉडल के समर्थकों का मानना है
कि विभिन्नताएं एक ही क्षेत्र में पहले से रहने वाले होमो इरेक्टस और अन्य समुदायों में पाए जाने वाली असमानताओं के कारण है। दूसरी तरफ प्रतिस्थापन मॉडल एक स्थान में मानव विकास के तर्क को बल देता है। आधुनिक मानव में सभी जगह शारीरिक तथा उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है और इसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि यह समानता इसलिए है क्योंकि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र अर्थात अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे। तो प्रतिस्थापन मॉडल जो सिंगल ओरिजिन थ्योरी है, अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत, उस पर बल देता है। इनका मानना है कि सबसे पहले मानव अफ्रीका में उत्पन्न हुआ और फिर वहीं से ये अन्य स्थानों को गए। इस बात की पुष्टि यूथोपिया के ओमो नामक स्थान पर मिले प्राचीन मानव जीवाश्मों से भी होती है। दूसरी ओर आज के मनुष्यों में पाई जाने वाली शारीरिक भिन्नताएं किसी स्थान विशेष पर निरंतर हजारों वर्षों तक अस्थायी रूप से रहने के कारण भी होती है, जो मुख्य रूप से भौगोलिक और स्थानीय परिस्थितियों के कारण देखने को मिलता है। और ये भिन्नताएं मनुष्य स्थान विशेष की परिस्थितियों के अनुसार समय के साथ परिवर्तित भी हो जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानव के उद्भव के दो सिद्धांत हैं, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और प्रतिस्थापन मॉडल। अब मैं आपको मानव के प्रारंभिक दौर में अपने भोजन को प्राप्त करने के तरीकों से संबंधित स्वरूप के बारे में बताऊंगा। अर्ली ह्यूमन्स would have obtained food through a number of ways. These ways included gathering, hunting, scavenging, and fishing. First, gathering. The process of gathering includes the collection of plants, foods like berries, seeds, nuts, and fruits. We can generally assume about the process of gathering because very few evidences are available about it. Enough amount of fossils bones are available, but fossilized plants are rarely found related that period. The only way to gather information about plant intake would be if plant remains were accordingly burnt. Carbonizations take place with this burning. In this way, organic matter is preserved for a long time, but so far archaeologists have not found enough evidence of carbonized seeds for this very early period. First important wage related from the obtaining food by the early humans, gathering. Second, hunting. Probably hunting began later around 5 lakh years ago from two sides of the southern England and Germany. The earliest clear evidences for planned deliberate hunting and larger mammals have been found related from the butchery. Scavenging. The early hominids scavenged for meat and marrow from the animals which had died naturally or had been killed by the other larger animals. It is quite possible that small mammals like birds, rodents, reptiles, and even insects were also eaten by early humans.
So third process related from the early human obtaining food, scavenging. And fourth important, fishing. Fishing was also an important way of obtaining food by early humans. It is a evidence from the discovery of fish bones at different sites. So there are four important ways related from the early humans getting foods: gathering, hunting, scavenging and फिशिंग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन कालीन समय में प्रारंभिक जो मानव था वो भोजन प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 4 तरीकों का इस्तेमाल करता था। संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज, गुठलियाँ, बेर, फल, कंदमूल को इकट्ठा करना शामिल था। संग्रहण के संबंध में अनुमान लगाया गया है और इसके बारे में जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, साक्ष्य हैं, वो बहुत कम मिलते हैं। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो काफ़ी मिलते हैं, परंतु पौधों के जो जीवाश्म हैं फॉसिल्स के रूप में वो बहुत कम मिलते हैं। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एकमात्र तरीका दुर्घटनाओं या संयोगवश जले हुए पौधों के प्राप्त अवशेष हैं और इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और जला हुआ जैविक पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखता है और इसके आधार पर पुरातत्वविद पुराने जमाने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों का साक्ष्य प्राप्त करते हैं, लेकिन उस समय से संबंधित इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। दूसरा जो प्रमुख तरीका था वो शिकार संभवतः बाद में शुरू हुआ, लगभग 5 लाख साल पूर्व। स्तनपायी जानवरों के योजनाबद्ध शिकार और उनके वध करने का सबसे पुराना जो साक्ष्य 2 स्थलों पर मिला है, वो एक इंग्लैंड में और दूसरा जर्मनी में, यानी दोनों साक्ष्य यूरोप से संबंधित हैं। अपमार्जन तीसरी क्रिया थी जिसके माध्यम से आदिकालीन जो मानव था वो अपना भोजन जुटाता था। अपमार्जन का संबंध त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से है। इसमें ये माना जाता है कि आदिकालीन जो होमिनिड अपमार्जन के द्वारा उन जानवरों के लाशों से मांस, मज्जा खुरच कर निकालते थे और उन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये वे जानवर होते थे जो या तो अपने आप मर जाते थे या फिर किसी हिंसक जानवरों के द्वारा मार दिए जाते थे। इतना भी संभव है कि जो पूर्व होमिनिड और छोटे जो स्तनपायी जानवर थे उसमें चूहे, छुछुंदर और पक्षियों और सरीसृप से संबंधित कीड़े मकोड़े भी आदिकालीन जो मानव थे वो उन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। चौथी जो इम्पोर्टेंट प्रक्रिया थी भोजन जुटाने की वो थी मछली पकड़ने की। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था और इस बात की जानकारी अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियों से प्राप्त होती है, यानी जो अवशेष तत्कालीन समय से संबंधित मछली की हड्डियों से मिलने से प्रमाणित होता है। तो इस तरह से इस पाठ के 2 महत्वपूर्ण भागों के बारे में आपने जाना। एक मानव उत्पत्ति के सिद्धांत जो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं और दूसरा आदिकालीन मानव किस तरह से भोजन प्राप्त करते थे और उनके तरीकों के बारे में आपने जाना। तो इस से 2 प्रमुख जो विषय वस्तु हैं इस पाठ के, एक तो मानव उत्पत्ति के सिद्धांत और दूसरा आदि मानव किस प्रकार अपना भोजन प्राप्त करता था उसके बारे में आपने जाना।